آپ خود آؤٹ آف اسٹیشن تھا، تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں، اس پہ ابھی اسٹیٹس کیا ہے کونسل کا؟ کونسل کا آپ کے سامنے ہے، میں سی سی ہوں یہاں پہ. باقی آپ جانتے ہیں آج کا ماحول، آپ لوگ جانتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ڈسٹرکٹ بن گیا، لے میں کونسل نہیں ہے. تو باقی تو اللہ جو بہتر کرے گا وہی ہے کہ ہمارا یہ ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوگا وہی ہوگا. کونسل سے فی الحال کرگل نہیں ابھی آپ دیکھیں نا یہ مجھے لگتا ہے آج کے ڈیٹ میں میرا رسپانسبلٹی اور زیادہ بڑھ جاتا ہے آج کے اس ماحول میں. تو اس لیے مجھے اپنی رسپانسبلٹی، میرے ڈاکٹر جعفر کو کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. میں پبلک کے لیے جو پبلک کو اچھا لگے گا اس کے حساب سے میں، اور آج کے ماحول میں تو اسی کے حساب سے میں کام کر رہا ہوں. سی تک سے ریزائن دینا چاہیے، تو اس وقت آپ کا کیا ٹیک رہے گا؟ ٹیک کیا رہے گا وہ تو میں نے پہلے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا. سر اسی دوران آپ ہائی کمان سے بھی ملے سر کنسلٹیشن؟ نہیں میں نہیں ملا سر. اسی 2-2.5-3 سال میں آپ کی کیا میجر اچیومنٹ رہی ہوگی سر، اور پینڈنگ پروجیکٹس آپ کے ٹیم میں رہا ہوگا، اور تھوڑا بہت میجر اچیومنٹ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ میجر اچیومنٹ تو میں شیئر کروں گا ہی، مگر میں آپ کو بتا کے رکھتا ہوں. ایک تو میں نے اپنا 2.5 سال کا جو میں نے ورک ڈن ہے نا، میں اس کو ابھی آپ کو کچھ دنوں کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا. میں نے اس میں اپنا پورا اچیومنٹ ہم نے دے کے رکھا ہے اس میں. تو باقی پینڈنگ بھی بہت ہے، ابھی پینڈنگ بہت ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں میں کچھ کام کروں جس کا رزلٹ مجھے اچھا ملے. تو اس طرح ابھی آپ کا ہسپتال کا لیجئے، آپ کا فیسلٹیز دینے کا، ہسپتال میں کوئی بھی ابھی پوسٹ خالی نہیں ہے. ہم خاص کر ڈسٹرکٹ ہسپتال میں سب دیکھو کتنا کرائسس ہوتے تھے. آپ کے پل میرے ٹائم میں 8-10 بنے ہیں، اس طرح بڑے بڑے. اچھا آپ کے ایم آر آئی آئے ہیں، سی ٹی اسکین آئے ہیں. آپ کے باقی جو پبلک کے جو ایشوز ہے وہ میں نے کوشش کیا ہے سب کو، پبلک کے ایشوز ہے وہ گریونسز ہے اس کو کم، اس میں نہ صرف کم کرنے کا بلکہ اس میں بہت سارے جگہوں پہ میں کامیاب ہو گیا ہوں اس میں. سر تو ابھی ریسنٹلی ایک برننگ ایشو سامنے آیا، آر ای سی ایل پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہے آر ای سی کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کر رہے ہیں جس میں 51% شیئر جو ہے پرائیویٹ کمپنی کو جا رہا ہے. تو اس ایشو پہ ایل ایچ ڈی سی کی طرف سے کوئی پریس سٹیٹمنٹ سامنے نہیں، اور آپ کا پرسنل اسٹینڈ کیا ہے؟ نہیں، میرا پرسنل اسٹینڈ میں بالکل خلاف ہوں اس کے. تو ایل ایچ ڈی سی بھی اپنا ریزلمنٹ دے رہا ہے کیونکہ میں آؤٹ آف اسٹیشن تھا. تو میں تو ہمیشہ جو پبلک کے ہت میں ہوگا نا، پبلک انٹرسٹ میں ہوگا، اسی کے حساب سے میں کام کروں گا. جہاں پہ پبلک کا انٹرسٹ اگر اس میں یہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے پبلک نے چن کے دیا ہے، جہاں پبلک کے انٹرسٹ آپ کو لگے گا اس پہ داؤ پہ لگا ہے، تو میں بالکل بھی، مجھے اوپر والا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر میں اس پہ کمپرومائز کروں تو. نہیں میں دیکھو آج ہی بیٹھا ہوں بہت دنوں کے بعد، اور لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، میرا یہ پہلے سے فکس تھا پلان. میں نے کہا تھا ہمارے گھر والے کچھ ان کو حج پہ جانا تھا تو اس کے لیے بھی مجھے جانا تھا. پلس میرا جموں میں آلریڈی انگیجمنٹ تھا 1-2 جگہ پہ، مجھے ایسے چیف گیسٹ بلایا تھا وہاں پہ. پیریٹک کانفرنس ایک تھا اور دوسرا اور ایک ہیماٹولوجی کا کانفرنس تھا، تو وہ اس کو اٹینڈ کرنا تھا. پھر جہاں جہاں بھی ضرورت پڑا وہ میں نے اٹینڈ کر دیا ہے، مطلب جو بھی میرے اس میں ہے. باقی یہ ہے کہ کام تو چلتے رہتا ہے، اور کونسل بھی ہمارا اللہ کی فضل سے ٹھیک چل رہا ہے. سر جیسے لے میں ابھی ہی کونسل نہیں ہے تو وہاں پہ جو پبلک ہے ان کا ریپرزینٹیو کوئی نہیں ہے سر. ابھی کرگل میں بھی ابھی کونسل چل رہا ہے 2.5 سال کے بعد بھی ابھی کونسل. سر یہ کونسل جو ہے ہل کونسل کرگل کا ہونا کتنا ضروری، اس سے پبلک کو کتنا اس سے بینیفٹ ملتا ہے سر؟ یہ کونسل ڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کنٹینیو پوائنٹس اپ ہونا چاہیے سر. یہ کتنا دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں گا. ابھی پبلک کا ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ کہ بڑے آتھر کا لکھنا ہے کہ بیسٹ فارم آف جو ایک سنگل یہ کیا آتے ہیں اس کو ہم ڈکٹیٹرشپ یا کہیں گے، مگر ڈکٹیٹرشپ کے بغیر کوئی بھی بیسٹ فارم جو مطلب ہمارا
यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई होगा उससे फार बेटर है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। मतलब अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई रिप्रेजेंटेटिव काम कर भी नहीं रहा होगा मगर उसको पब्लिक को जवाब तो देना है ना, का पब्लिक को जवाब देना। आज मैं हूँ, कल मैंने काम नहीं किया, लोग मुझे हटाएंगे, तो पब्लिक का दर्द जितना रहता है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को उतना बाकी ऑफिसर्स को हो सकता है वो भी काम करने में बहुत इंटरेस्ट रहते हो, मगर पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पे कंप्रोमाइज हो जाता है। एक ये, दूसरा ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ये पब्लिक के बीच में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो ब्रिज है, एक पुल की तरह काम करते हैं जो इश्यूज ये वहाँ तक हायर अप्स तक या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा देते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली जो बड़ी इशू सामने निकल गया है एस 301 जो नेशनल हाईवे रोड बन रहा है मुंजी से लेके लगभग सांको से थोड़ा नज़दीक तक रोड जो है बिल्कुल अभी खस्ता हालत में है। इमाम जुमा बार बार जो है जुमे के खुतबों में ये रिजाइनमेंट दिखाते हैं और साथ में करगिल में जो वाटर एटीएम बने हैं वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल है। एसएससी से आपने क्या काम किया है सर इन इश्यूज को रिजॉल्व करने? इन इशू को खासकर जो मिंजी वाला है, देखिए आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। मिंजी वाला जो रोड का अलाइनमेंट था, पहले कंट्रैक्टर को आया था, उस कंट्रैक्टर ने सब लेट किया था। हमारे यहाँ पे हैदरी कंस्ट्रक्शन करके एक है, तो उनका आपस में बना नहीं तो विड्रा हो गए। फिर बाद में क्या करना पाया, उसमें हम सब ने बड़ा कोशिश करके उनका वो कैंसिल ही कर दिया, उनका टेंडर। आज फिर आपको ये पता है कागजी बहुत टाइम लगता है, अब कागजी तौर पे जाके अब ये टेंडरिंग प्रोसेस में मेरे ख्याल में अभी टेंडर भी हो गया होगा, तो वो सब क्योंकि ये फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, ये इससे ट्रांसपोर्ट हाईवेज उनमें मिनिस्ट्री में जाता है, तो वहाँ से होके अब जाके हाईवेज अथॉरिटी ने ये देखे, अभी वो टेंडरिंग प्रोसेस में। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगले वही महीने के आसपास में ये काम शुरू होना चाहिए। न सिर्फ ये, बाकी हम उस पे जो हमारा 0 to 6 वाला जो ये था क्या था स्ट्रेच था, वो उन्होंने डिस्कोप करके कुछ होता है उसको ख़त्म ही कर दिया था, वो हमने फिर निकाला है, वो भी वो अभी फिर अप्रूव होने वाला है। तो मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ उन सब पे। ये सर जिस तरह से एनर्जेटिसी की तरफ से वाटर एटीएम सर यहाँ भी इंस्टॉल है, करगिल के डिफरेंट एरियाज में वाटर एटीएम इंस्टॉल तो है, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है। लोगों का कंसर्न ये है कि सीएसआर प्रॉपर तरीके से आवाम के फायदे में होना चाहिए, इस तरह से यूज़ करेगा तो आवाम का जो टैक्स जितने भी कलेक्शन होते हैं उसका मिस यूज़ होता है, ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं। एसएससी आपने इस इशू को टेकअप किया है तो क्या रिजल्ट निकला? नहीं, देखिए आपको मैं एक चीज़ बताऊं, एक तो सीएसआर आपके टैक्स है, वो तो हमको एक किस्म का ये मिलता है जब कोई कंपनी या कोई बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर काम करता है, आपको काम करने के एवज में कुछ मिलते हैं। तो इन्होंने जैसे एनआईजीसीएल है या आपके ये क्या एनएचपीसी है, मैंने जब से आया मैंने वो छोटे काम पे ये नहीं किया, मैंने एक काम किया, मैंने जेएनके बैंक से लिया तकरीबन 79 लाख। आप खुद जाके देखिए, मैंने पेशेंट एक अटेंडेंट वो बनाया है, 10 कमरे हैं, उसमें A to Z मैंने फैसिलिटीज रखा है, आपके पानी से लेके आपके कप से लेके आपके गैस सिलेंडर से लेके बिछौना से लेके आपका प्लेट, वो सब वहाँ है, वो मैंने करवाया है। ये दूसरा मैंने इसमें करवाया क्या कहते हैं उसके आपके सीएसआर में मैंने कराया, ये 2 हमने क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस लिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सर जो अभी जो सर कौंसल है यहाँ पे, उसका स्टेटस क्या है सर अभी यहाँ पे? क्योंकि ऐसे कुछ बातें सुनने में आ रहा है कि 2.5 साल का कुछ एग्रीमेंट था, उसके बाद फिर ये था, लेकिन आप खुद आउट ऑफ स्टेशन था, तो उस पर थोड़ा सा बताइए इस पे अभी स्टेटस क्या है अभी कौंसल का है? कौंसल का आपके सामने है, मैं सीसी हूँ यहाँ पे, बाकी आप जानते हैं आज का माहौल, आप लोग जानते हैं, अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट बन गया, ले में कौंसल नहीं है, तो बाकी तो अल्लाह जो बेहतर करेगा वही है कि हमारा ये मानना है, अल्लाह ताला ने जो लिखा होगा वही होगा। कौंसल से फिलहाल करगिल नहीं कर दिया,
नहीं, अभी आप देखें ना ये मुझे लगता है आज के डेट में मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है आज के इस माहौल में। तो इसलिए मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे डॉक्टर जाफर को कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं पब्लिक के लिए, जो पब्लिक को अच्छा लगेगा उसके हिसाब से मैं, और आज के माहौल में तो उसी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। आपको सीसी तक से रिजाइन देना चाहिए, तो उस वक्त आपका क्या टेक रहेगा? टेक क्या रहेगा वो तो मैंने पहले, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। सर इसी दौरान आप हाईकमान से भी मिले सर कंसल्टेशन? नहीं, मैं नहीं मिला सर। इसी 2 ढाई 3 साल में आपकी क्या मेजर अचीवमेंट रही होगी सर, और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आप कितने में रहा हो, और थोड़ा बहुत मेजर अचीवमेंट अगर आप शेयर करना चाहते हैं? मेजर अचीवमेंट तो मैं शेयर करूंगा ही, मगर मैं आपको बता के रखता हूँ। एक तो मैंने अपना 2.5 साल का जो मैंने वर्क डन है ना, मैं उसको अभी आपको कुछ दिनों के बाद आपके सामने आ जाएगा। मैंने उसमें अपना पूरा अचीवमेंट हमने दे के रखा है उसमें। तो बाकी पेंडिंग भी बहुत है, अभी पेंडिंग बहुत है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं कुछ काम करूँ जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिले। तो इस तरह अभी आपका अस्पताल का लीजिए, आपका फैसिलिटीज़ देने का, अस्पताल में कोई भी अभी पोस्ट खाली नहीं है। हम खासकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सब, देखो कितना क्राइसिस होते थे। आपके पुल मेरे टाइम में 8-10 बने हैं, इस तरह बड़े बड़े। अच्छा, आपके MRI आए हैं, CT स्कैन आए हैं, आपके बाकी जो पब्लिक के जो इश्यूज है वो मैंने कोशिश किया है, सबको पब्लिक के इश्यूज है वो ग्रीवेंसेस है उसको कम, उसमें न सिर्फ कम करने का बल्कि उसमें बहुत सारे जगहों पे मैं कामयाब हो गया हूँ उसमें। सर तो अभी रिसेंटली एक बर्निंग इशू सामने आया, आरईसी एलपीडीडी डिपार्टमेंट जो है आरईसी के साथ एक एमओयू साइन कर रहे हैं जिसमें 51% शेयर जो है प्राइवेट कंपनी को जा रहा है। तो इस इशू पे एलएचडीसी की तरफ से कोई प्रेस स्टेटमेंट सामने नहीं, और आपका पर्सनल स्टैंड क्या है? नहीं, मेरा पर्सनल स्टैंड में बिल्कुल खिलाफ हूँ उसके। तो LSGC भी अपना रिजल्टमेंट दे रहा है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो मैं तो हमेशा जो पब्लिक के हित में होगा ना, पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, उसी के हिसाब से मैं काम करूंगा। जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट अगर उसमें ये हो जाता है, क्योंकि मुझे पब्लिक ने चुन के दिया है, जहाँ पब्लिक के इंटरेस्ट आपको लगेगा उस पर दाव पे लगा है, तो मैं बिल्कुल भी, मुझे ऊपर वाला अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा अगर मैं उस पर कंप्रोमाइज इस करूँ इशू तो। को आपने ठेकर किया सर? नहीं, मैं देखो आज ही बैठा हूँ बहुत दिनों के बाद, और लोगों का ये भी मानना है, मेरा ये पहले से फिक्स था प्लान। मैंने कहा था हमारे घर वाले कुछ उनको हज पे जाना था, तो उसके लिए भी मुझे जाना था। प्लस मेरा जम्मू में ऑलरेडी एंगेजमेंट था, 1-2 जगह पे मुझे ऐसे चीफ गेस्ट बुलाया था, वहाँ पे पीरियडिक कॉन्फ्रेंस एक था और दूसरा और एक हेमाटोलॉजी का कॉन्फ्रेंस था। तो वो उसको अटेंड करना था। फिर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ा वो मैंने अटेंड कर दिया है, मतलब जो भी मेरे उसमें है। बाकी ये है कि काम तो चलते रहता है, और कौंसल भी हमारा अल्लाह की फजल से ठीक चल रहा है। सर जैसे ले में अभी हिल कौंसल नहीं है, तो वहाँ पे जो पब्लिक है उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है सर। अभी करगिल में भी अभी कौंसल चल रहा है, 2.5 साल के बाद भी अभी कौंसल सर। ये कौंसल जो है हिल कौंसल करगिल का होना कितना जरूरी, इससे पब्लिक को कितना इससे बेनिफिट मिलता है सर? ये कौंसल डिफांग नहीं होना चाहिए, इसको कंटिन्यू पॉइंट्स अप होना चाहिए सर, ये कितना इम्पोर्टेंट? देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा, अभी पब्लिक का हमारा ये मानना है कि ये के बड़े ऑथर का लिखना है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ जो एक सिंगल, ये क्या कहते हैं उसको हम, डिक्टेटरशिप या कहेंगे, मगर डिक्टेटरशिप के बगैर कोई भी बेस्ट फॉर्म जो मतलब हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई होगा उससे फार बेटर है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। मतलब अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई रिप्रेजेंटेटिव काम कर भी नहीं रहा होगा, मगर उसको पब्लिक को जवाब तो देना है ना, का पब्लिक को जवाब देना। आज मैं हूँ, कल मैंने काम नहीं किया, लोग मुझे हटाएंगे, तो पब्लिक का दर्द जितना रहता है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को उतना बाकी ऑफिसर्स को
हो सकता है वो भी काम करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, मगर पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पे कंप्रोमाइज हो जाता है। एक ये, दूसरा ये है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ये पब्लिक के बीच में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो ब्रिज है, एक पुल की तरह काम करते हैं, जो इश्यूज ये वहाँ तक हायर अप्स तक या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा देते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली जो बर्निंग इशू सामने निकल गया है, NH 301 जो नेशनल हाईवे रूट बन रहा है नीचे से लेके लगभग सांको से थोड़ा नज़दीक तक रोड जो है बिल्कुल अभी खस्ता हालत में है। इमाम जुमा बार बार जो है जुमे के खुतबों में ये रिजाइनमेंट दिखाते हैं, और साथ में करगिल में जो वाटर एटीएम बने हैं वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल है। ACCC आपने क्या काम किया है सर इन इशूज़ को रिजॉल्व करने? इन इशू को खासकर जो मिंजी वाला है, देखिए आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। मिंजी वाला जो रोड का अलाइनमेंट था, पहले कंट्रैक्टर को आया था, उस कंट्रैक्टर ने सब लेट किया था। हमारे यहाँ पे हैदरी कंस्ट्रक्शन करके एक है, तो उनका आपस में बना नहीं, तो विड्रा हो गए। फिर बाद में क्या करना पाया, उसमें हम सब ने बड़ा कोशिश करके उनका वो कैंसिल ही कर दिया, उनका टेंडर। आज फिर आपको ये पता है कागजी बहुत टाइम लगता है, अब कागजी तौर पे जाके अब ये टेंडरिंग प्रोसेस में मेरे ख्याल में अभी टेंडर भी हो गया होगा, तो वो सब क्योंकि ये फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, ये इससे ट्रांसपोर्ट हाईवेज उनमें मिनिस्ट्री में जाता है, तो वहाँ से होके अब जाके हाईवेज अथॉरिटी ने ये देखे, अभी वो टेंडरिंग प्रोसेस में। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगले वही महीने के आसपास में ये काम शुरू होना चाहिए। न सिर्फ ये, बाकी हम उस पे जो हमारे 0 to 6 वाला जो ये था, क्या था, स्ट्रेच था, वो उन्होंने डिस्कोप करके कुछ होता है उसको ख़त्म ही कर दिया था, वो हमने फिर निकाला है, वो भी वो अभी फिर अप्रूव होने वाला है। तो मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ उन सब पे। ये सर जिस तरह से NHIDC की तरफ से वाटर एटीएम सर यहाँ भी इंस्टॉल है, करगिल के डिफरेंट एरियाज में वाटर एटीएम इंस्टॉल तो है, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है। लोगों का कंसर्न ये है कि CSR प्रॉपर तरीके से आवाम के फायदे में होना चाहिए। इस तरह से यूज़ करेगा तो आवाम का जो टैक्स जितने भी कलेक्शन होते हैं उसका मिस यूज़ होता है, ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं। ACCC आपने इस इशू को टेकअप किया है तो क्या रिजल्ट निकला है? नहीं, देखिए आपको मैं एक चीज़ बताऊं, एक तो CSR आपके टैक्स से, वो तो हमको एक किस्म का ये मिलता है जब कोई कंपनी या कोई बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर काम करता है, आपको काम करने के एवज में कुछ मिलते हैं। तो इन्होंने जैसे NIGCL या आपके ये क्या NHPC है, मैंने जब से आया मैंने वो छोटे काम पे ये नहीं किया, मैंने एक काम किया, मैंने JNK बैंक से लिया तकरीबन 79 लाख। आप खुद जाके देखिए, मैंने पेशेंट एक अटेंडेंट वो बनाया है, 10 कमरे हैं, उसमें A to Z मैंने फैसिलिटीज रखा है, आपके पानी से लेके आपके कप से लेके आपके गैस सिलेंडर से लेके बिछौना से लेके आपका प्लेट, वो सब वहाँ है, वो मैंने करवाया है। ये दूसरा मैंने इसमें करवाया, क्या कहते हैं उसके, आपके CSR में मैंने कराया ये 2 हमने क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस लिए, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका रीजनल काउंसिल के मॉडल पे आपका क्या स्टैंड रहेगा, और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग काउंसिल है फिलहाल जैसे कारगिल में काउंसिल चल रहा है सर, इसके बाद अगर यही एग्जिस्टिंग रहता है तो दूसरे साइड से संस्कार भी मांग सकते हैं, नोबल अलग काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी मांग सकते हैं, तो ओवरऑल काउंसिल के फ्यूचर को लद्दाख में कैसे देखते हैं? देखिए फ्यूचर में जिस तरीके से हमें आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, हालांकि क्लियर उनकी तरफ से कोई रोड मैप या कोई ये नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कभी टेरिटोरियल काउंसिल, कभी रीजनल काउंसिल की बात जो चलती आ रही है, लेकिन उस चीज पे KDA और एपेक्स का एक क्लियर मैसेज, जैसे कि आप लोगों को मीडिया के थ्रू हमारे बार बार हमारे आप लोगों को सुना है कि काउंसिल के नाम पे कोई भी चीज हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी रहा आपका जो मेन मुद्दे हैं हमारे 6 शेड्यूल और स्टेटहुड, उसमें हमने स्टेटहुड अगर जल्दी अगर नहीं दे पाता है तो हमने यूटी विद लेजिस्लेचर की हमने जरूर बात की है, इससे नीचे हमने अभी तक कोई एक्सेप्ट हमने नहीं किया है, और काउंसिल के नाम पे कोई भी चीज हमने रिजेक्ट किया है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से
जल्दी बाजी में बोले या एक के पीछे एक ये बोले कि डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस हुआ और 2-3 दिन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया, जो कि मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छी ये है, क्योंकि लोगों के सोच में, लोगों के दिमाग में ये था कि डिस्ट्रिक्ट का अगर नोटिफिकेशन निकलेगा भी उसमें फुल फ्लेज एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा। ये इस चीज़ का खदशात हमें था, लेकिन ऑनरेबल एलजी साहब जब लद्दाख तशरीफ लाए है, उसने 1.5 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें करके दिखाया है। ये इसको हम वेलकम करते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब आगे इसका, क्योंकि कौंसिल है अभी, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कौंसिल कारगिल है, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कौंसिल ले है, ये तो 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम पे हमारा जो कौंसिल एक्ट बना है। अब जो नए डिस्ट्रिक्ट आए हैं, तो इसको किस तरीके से इस कौंसिल में या शामिल किया जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें, जैसे कि हमारे नए कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है अपना अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हमको डिस्ट्रिक्ट कौंसिल देना चाहिए। ये सारे चीजें मैं समझता हूँ जो 22 तारीख की हमारी सब कमेटी का मीटिंग है, उसमें काफी हद तक मुझे उम्मीद है कि सामने आएंगे। लेकिन हमने डिमांड ये किया था, जैसे कि आप सबको पता है केडीए और एपेक्स ने, चूंकि अमित शाह जी खुद ले तशरीफ ला रहे थे, तो हमारा एलजी साहब से मिलकर हमने ये गुजारिश किया था कि अमित शाह जी ले आ रहे हैं तो उनके चेयरमैनशिप में ले में एक हाई पावर कमेटी का एक मीटिंग बुलाया जाए, जिसमें काफी हद तक जो है हमें उम्मीद था कि हमारे जो हमारे डिमांड्स है उसमें कोई ना कोई हल जो है वो निकले। लेकिन अमित शाह जी ने प्योरली हमें ये कहा गया है कि ये जो टूर है ये प्योरली हम एक रिलीजियस टूर पे आए हैं, इस यहाँ पे बाकी किसी चीज पे नहीं होगा। लेकिन अभी भी हमारा डिमांड ये है कि जो सब कमेटी का मीटिंग है उसके फौरन बाद या उससे पहले हाई पावर कमेटी का एक मीटिंग बुलाए, और वक्त आ गया है कि लद्दाख के इन मसाइल का हल निकले। नहीं तो अगर इसमें और देरी अगर हो जाती है तो लास्ट ईयर जो चीजें हुई हैं, हमें खदशात है कि आगे जाके जो है पब्लिक फिर से रोड पे ना आए। सर एक क्वेश्चन है, रिसेंटली आपने पार्लियामेंट में डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस को लेके इशू रेज किया था, इसके बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन ने नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया, तो उसमें आपने मेंशन किया था कम्युनल बेस पे नहीं होना चाहिए, साथ में सांग को और शकर चिकतन को भी डिस्ट्रिक्ट देने की बात कर रहा था। तो सेंटर आपके बात को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहा, उसका क्या रीजन? जहां तक करगिल डिस्ट्रिक्ट जो अभी रहा है, उसमें हमारे शकर चिकतन, शरगोल और सांकू शुरू का हमने जो डिमांड है, बातें जो है वो जब अनाउंस हुआ उसके बाद से हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसको उठा रहे हैं। एमएचए में मैंने बार बार जब भी मैं एमएचए पहुंचता हूँ इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ, तो लास्ट कुछ महीना पहले इन्होंने एमएचए ने खुद ये माना था कि हाँ कहीं ना कहीं अभी एक बहुत बड़ा एक तबका, एक सेक्टर अभी ये हुआ है। उन्होंने यही कहा था कि इसके ऊपर हम कंसिडर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब डिस्ट्रिक्ट जो है इम्प्लीमेंट हो गया। अब उम्मीद है कि कम से कम अगर 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं तो 1 डिस्ट्रिक्ट का जो है करगिल जो बचे हैं उसमें जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट जो है इसमें अनाउंस करेंगे। सर आवाम का ये खदशा है अभी कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ है, ये पार्टिकुलरली शेड्यूल और 6 शेड्यूल के डिमांड को डाइल्यूट करने के लिए मरकजी सरकार ने एक पॉलिसी बनाया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस तो 2 साल पहले हुआ था, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये उनकी गलतफहमी है। डिस्ट्रिक्ट एक अलग मसला है, हमारे दूर दराज इलाके हैं, उन तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और डेवलपमेंट जो एक रैशनलाइज तरीके से डेवलपमेंट हर इलाके का हो, उसको सोच में रख के जो नया डिस्ट्रिक्ट दिया है, जिसको हमने वेलकम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर सोच लेके कि हम डिस्ट्रिक्ट देंगे और इनको डिवाइड करेंगे, इस सोच को लेके अगर ऐसा कुछ है तो ये उनके बिल्कुल ये है कि हम इस चीज से डिवाइड बिल्कुल होने वाला नहीं है। पिछले बार आपको पता है कि जंस्कार से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए थे। आज लेह में देखिए, लेह में भी यही मसले जो है लोगों के खदशात में ये है कि
یہ ڈسٹرکٹ کے اس میں سے یا الگ الگ طریقے سے لوگوں کو الگ الگ کر رہے ہیں، لیکن لے کے ہر کونے سے ہر گاؤں سے ہر علاقے سے جو ہے وہ اپیکس باڈی کو کا جو ہے ساتھ دینے کے لیے لوگ ابھر کے آئے ہیں. اور کرگل میں خاص کر بالکل آج تک آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ کیڑے میں ایسے کچھ مسئلہ ہے. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے، کوئی یہ دو رائے نہیں ہے کہ جو ہمارا لارجر جو ہمارا مدعے ہیں لداخ کے، اور یہ مدعا صرف کسی پرسنل کسی ذات کا یا کسی کمیونٹی کا یا کسی علاقے کا تو مسئلہ ہے نہیں، ہمارے پورے لداخ کے جو مستقبل ہے اس کا مسئلہ ہے. جنریشن ٹو جنریشن ہمارے جو آنے والا جنریشن ہے یہ ان کے مسئلے، ہمارے لداخ کے ہمارے آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے. ہمیں خدشات ہے کہ جس اور آج کے ڈیٹ میں لداخ کو لے جا رہا ہے، آج ہم سمجھتے ہیں ہمارے بہت سارے سیکٹر اب شروعات ہوا ہے جس کو پرائیویٹائز کرنے کے راستے پہ چل رہا ہے. اس طرح رہے گا تو جو چیزیں ہمیں یوٹی بننے کے بعد جو محسوس ہوا کہ بھائی ہم لداخ تو رہے گا لیکن لداخی کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے گا، ہمارے کلچر ختم ہو جائے گا، ہمارے تمدن ختم ہو جائیں گے. تو ہمارا لڑائی وہ لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں کوئی زاسکر الگ نہیں ہے، کوئی دراز الگ نہیں ہے، کوئی نبرا الگ نہیں ہے. یہ اگر سوچتا ہے کوئی، یہ ان کی بیوقوفی ہے. آنے والے دنوں میں اگر ہمارے جو ایشوز ہے اس پہ سنسیئرلی اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا، ہمارے عوام کے خواہشات اور ہمارے خواہشات کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں، ہم بار بار کہے ہیں ہم بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتے ہیں. اگر یہ مسئلہ کوئی حل نہیں نکلتا ہے تو پھر سے جو ہے پورا لداخ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا. سر ابھی جو پریزنٹ ایشو آ رہا ہے کارگل کاؤنسل کو لے کے آ رہا ہے، آپ لوگوں کی معاہدہ بھی ہوا تھا سر دائرہ صاحب کو لے کے، تو تھوڑا بہت آپ بریف کرو گے کاؤنسل کا اسٹیٹس ابھی کیا ہے سر؟ اس میں کچھ چینجنگ سی سی میں ہو یا اس کے جو کاؤنسلرز میں وہ دیکھنے کو ملیں گے یا اسی کاؤنسل کو آپ لوگ کے دیکھیے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا جو کوalition ہے اس کونسل میں، جب کونسل الیکشن ہو رہے تھے اس سے پہلے ہوا تھا، اور چونکہ یوٹی بننے کے بعد پہلا ہمارا کونسل الیکشن تھا، اور اس وقت ہمارا کیڈیے بھی آلموسٹ جو ہے بنے ہوئے تھے. جس کیڈیے کو بنانے میں اور جس پلیٹ فارم پہ ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے ریلیجس آرگنائزیشنز کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے بہت محنت ہم نے کیا تھا، آپ کو پتہ ہے. اور اس میں پیش جو ہے ہمارے مرحوم قمر علی آخوند صاحب کا، بلکہ میں تو بولتا ہوں شروعات ان کا ہے، لیکن اس شروعات کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارے حجت الاسلام والحسین آغا شیخ ناظر المہدی صاحب کا بھی ہے. انہوں نے یہ مجھے خاص کر یہ سجیشن دیا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آگے رکھ کے آپ ایک بناؤ. اس میں قمر صاحب، کربلائی صاحب سب مل کے ہم نے محنت کر کے یہ جو ہمارے تمام جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہو، ریلیجس ہو، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ایک یونائٹلی ہم نے اس کے لیے فائٹ کرنے کے لیے یہ کیا تھا. اور یہ جو کولیشن ہے، کولیشن جو بنا تھا دو پارٹیوں کے بیچ میں تو بنے تھے، لیکن دو پارٹیوں کے بیچ سے اوپر اٹھ کے تھے. یہ قومی ایک مسئلہ تھا، یہ ہمارے یونٹی کے لیے بہت ضرورت تھا، ہمارے پارٹیز سے بھی زیادہ ہمارے یونٹی کے لیے ہمارے زیادہ تھا. تو اس وقت یہ کولیشن بنی تھی جس کا باضابطہ ایک ایگریمنٹ بنے ہوئے ہیں ہمارے قمر علی آخوند صاحب مرحوم اور کربلائی صاحب کے چیئرمین میں. ہمارے 5 نفر کے کمیٹی تھے جو ہم نے سائن کر کے بنے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا خاص کر نیشنل کانفرنس کا سٹینڈ یہی ہے کہ ہم اس کولیشن کو کبھی بھی ٹوٹنے ہم نہیں دیں گے. لیکن یہ ہے کہ ابھی بات چیت چل رہا ہے کہ کانگریس کے ساتھ بھی ہم نے بات کیا اور ان سے بھی گزارش کیا تھا کہ ہو سکے تو اس کو کنٹینیو کریں، لیکن ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کیا. اب الٹیمیٹلی آنے والے 3-4 دنوں میں انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی، کیونکہ اب یہ لمبا کھینچتے جا رہے ہیں تو لوگوں میں بھی ایک بڑا اس کا وہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے 2-3 دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی ڈیسیجن ہم لیں گے. لیکن یہ ایک کلیئر ہمارے پارٹی کی طرف سے ہے کہ ہمارا کولیشن ہم بالکل توڑنا نہیں ہے. ہم نے کولیشن کو ہم نے 5 سال کا ہم نے کولیشن کا ہم نے وعدہ کیا ہے، اس 5 سال کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. آپ تو کہنے کو مطلب ہے چینجنگ نہیں نہیں چینجنگ اگر کانگریس اب اس میں ہمارے ابھی بات چیت
चल रहा है कि अभी किस तरीके से हम इसी को कंटिन्यू करें या चेंजिंग करें, तो इंशाल्लाह डिसीजन पार्टी लेंगे। अभी आने वाले 2-3 दिन में आप लोगों को डिसीजन बता जस्ट सीसी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहना है, तो सीसी साहब का कहना है कि चेयरमैन ने हूँ और काउंसिल चल रही है जिस तरह से। नहीं, वो तो सही बात है, अभी तो चल रहा है। अभी आने वाले 2-3 दिन तक जो भी फैसले हैं वो फैसला आएंगे, उसके बाद तो जो फैसला आएंगे उस हिसाब से काम होगा। सर अगर काउंसिल इस बार रिशफल होता है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फिर से री इलेक्शन या री नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, तो उस वक्त आवाम में काफ़ी ये गलतफहमी होगा कि काउंसिल डिसॉल्व हो जाएगा और हमारा लोकल रिप्रेजेंटेशन का ये एक किस्म का जो डर जो है हर ये आज का नहीं है, पिछले काउंसिल में भी जब यूटी बन गया फिर पीडीपी खत्म हो गया, उस वक्त भी हमारे उसमें काफ़ी इसको लेके चला था, उस वक्त भी ये बातें चली थी। लेकिन ये होने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि हमारा एक्ट साफ है, एक्ट में क्लियर लिखा है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ऐसा करेंगे, किसी के लिए अपना जो ये ख़त्म नहीं करेंगे। अगर करता है तो ये मैं समझता हूँ, ये मैं अपना ज़ाती समझता हूँ, ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक ये है, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे हमारे होम मिनिस्ट्री हो, आज लड़ाई तो उसी की बात की है ना। और आज वो कौंसल को एम्पावरमेंट करने की बात करती है, आज कौंसल को स्ट्रेंथन करने की बात करता है। अगर वो बात करता है, दूसरे साइड से ऑलरेडी आपका नॉमिनेशन का केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, तो फिर लोगों का जो थोड़ा बहुत भी अगर विश्वास अगर इस कौंसल जो कहते हैं गवर्नमेंट उस पे है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो वैसे तो गवर्नमेंट जो है यूटी, ये तो प्योरली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, तो एलजी क्यों किसी के लिए अपना ये वो खत्म करेंगे। जो वादे जो वो लोग कर रहे हैं, जो लोगों से कर रहे हैं कि भाई हम कौंसिल को एम्पावर कर रहे हैं, कौंसिल में ये पावर है, कौंसिल में वो पावर है, अगर वो चीज अपने हाथों से वो लोग खत्म करता है, तो ये तो एक बहुत बड़ी एक अब फिर ये तो लोगों के सामने सारी चीजें आने वाली है। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि कौंसिल एक क्लियर है, अगर ये हमें करना पड़ता है तो कौंसिल एक क्लियर है, तो उसमें तो कोई ये नहीं होगा। सर जो ले में कौंसल का टर्म खत्म होगी, उसके बाद अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला, तो लोगों में ये डर है कि ले में नोटिफिकेशन नहीं निकला, अब यहाँ पे सीसी साहब अगर रिजाइन देता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूटी इस तरह की नोटिस नहीं आएगा, तो पूरा टोटली जो कौंसल जो है अभी कारगिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सुनने के लिए कौंसल है, नहीं तो लोग नहीं तो फिर बिल्डर कैसे हो जाएगा, उसी में सर लोग कंफ्यूज है। देखिए अब पता नहीं कई लोगों से या कई सेक्टर से इस तरह के जो एक वो फैला रहे हैं जो लोगों के उसमें दिमाग में, लेकिन करगिल में हमारे लोग अच्छे खासे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ले काउंसिल को डिसॉल्व नहीं किया गया था, ले काउंसिल का टेन्योर खत्म हो गया, वो काउंसिल अपने आप खत्म हो गया, एज पर एक्ट खत्म हो गया। अब उसको नए सिरे से इलेक्शन करना है, नए सिरे से इलेक्शन के लिए 6 महीना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नए डिस्ट्रिक्ट 5 की नोटिफिकेशन आया है और बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंट हुआ है, तो एक दो जगह पे अभी भी डिमांड कर रहा था डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे नज़रअंदाज हुआ है। इसे उन लोगों का एलिगेशन है कि मेजर पॉपुलेशन होते हुए साल को और शक्कर चिकन को इग्नोर किया गया है, तो इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए सबसे पहले मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं पूरे खत्ते लद्दाख के आवाम की तरफ से। और क्योंकि कल का जो डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन निकाला ऑफिशियली, ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है। जैसे कि आप लोगों को पता है, खत्ते लद्दाख में 1947 से लेके पहली बार 1979 में पहला डिस्ट्रिक्ट करगिल डिस्ट्रिक्ट बना था। फिर इसके बाद 60-65 साल के बाद आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 14-15 साल में हमें 5 डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट हुआ। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपको भी पता है खत्ते लद्दाख एक एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा जगह है। इसमें जो डेवलपमेंट के जो काम है वो लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाने में बहुत दिक्कतें आता था।
तो लिहाजा गवर्नमेंट ने ये एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर आज जो है गवर्नेंस का जो रोल है उसको डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए आज ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट किया है ऑफिशियली। इसके ऊपर जो है हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने इसको इनोग्रेट किया है। और साथ ही साथ में मैं तमाम जो हमारे नए डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट हुआ है, चाहे हमारे द्रास डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे जांस्कर, हमारे नुब्रा, चांगथंग, शाम, इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ में आने वाले दिन में बहुत सारे जो डेवलपमेंट के चीज़ है वो हमको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में आप लोगों ने जो सवाल पूछा कि यहाँ पे कुछ और लोगों जगहों का डिमांड था, जैसे कि हमारे करगिल के सुर सब डिवीज़न के लेके हमारे शकर चिकतन एरिया को लेके उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए उन लोगों का भी डिमांड जो है वो जेन्युइन है। गवर्नमेंट उसके ऊपर हमने भी पहले उनके ऊपर नोटिस हमने लेके रखा है। इन फ्यूचर आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह की लीडरशिप में जल्द से जल्द जो है हमारे संघ को और हमारे शकर चिकतन को भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा और आने वाले दिन में आप लोग देखा जाएगा। और आज ये ना होने का एक मुझे जो रीज़न लगता है उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे सीसी साहब का है। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, खासकर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर साहब, वो खुद सूर्य इलाके से वो रिप्रेजेंट करता है। आज के डेट में वो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी है। और साथ ही साथ में इसमें और बड़ा रोल जो है प्ले करना चाहिए था हमारे एमपी, ऑनरेबल एमपी लद्दाख को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से उनका जो रवैया रहा, उनका जो अप्रोच रहा, वो बिल्कुल लोगों की अपेक्षाओं पर नहीं उतरा। आज वो लोग महरूम रह चुका है। डिस्ट्रिक्ट का मेन जो हमें लगता है ये इनके अपनी ज़ाती मफाद, अपनी कुर्सी के लालच, दाख और खुद बिलखुसूस करगिल की जो एरिया है, संघ को हो या शकर चिकतन हो, इन एरिया को उन्होंने इग्नोर किया है। आज जिस दिन मैंने जो नोटिफिकेशन निकला उस दिन उनको ये समझना चाहिए था कि जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है, कहने को बहुत कुछ कहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना, उन्हीं की बातों से ही लग रहा है वो आवाम की ख्वाहिशात के ऊपर, आवाम की जो मुश्किल परेशानी है, उनकी डिमांड्स है, उनके ऊपर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। वो अपनी कुर्सी को बचाने के ऊपर जो है वो ज़्यादा सीरियसनेस था। वो किस तरह अपना कुर्सी जो बचाए, किस तरह वो अपना सीसी का कुर्सी जो है वो अपने पास रखे, उनका सोच, उनका थिंकिंग वही है, ना कि उनको आवाम का कोई परवाह है। आवाम का जो मसाइल है, मुश्किलात है और उनके जो जेन्युइन डिमांड है खासकर डिस्ट्रिक्ट को लेके, तो उनके ऊपर कोई सीरियस नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बखूबी इल्म है, आज तक हमारे सूर्य इलाके से कोई इतना आवाज नहीं उठाया था डिस्ट्रिक्ट के लेके। आप खुद वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, आप खुद भी पता है वहाँ पे आज तक पहले जब हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने जिस दिन डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट किया, तब से वहाँ जो है संघ इलाके में डिस्ट्रिक्ट का आवाज उठा। इससे पहले मुझे बताइए कब आवाज उठाया था डिस्ट्रिक्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट का डिमांड कब वहाँ से राइज हुआ था? हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो कभी नहीं सुना कि संघ इलाके में हमें डिस्ट्रिक्ट चाहिए, हमने कभी नहीं सुना शकर चिकतन में डिस्ट्रिक्ट चाहिए। लेकिन जब हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया कि हम खत्ते लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, फिर इसके बाद जाके इन्होंने ये आवाज उठाने की कोशिश की। चलो ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल जिनको प्ले करना चाहिए था वो हमारे ऑनरेबल सीसी साहब का, डॉक्टर जाफर साहब का था और हमारे ऑनरेबल एमपी साहब का था। ये दोनों जो है इन्होंने ये फेल हो गए हैं। ये बिल्कुल आवाम के जो उम्मीद है उनके ऊपर खरा नहीं उतरा है। इनका जो आज करगिल जो है 2 डिस्ट्रिक्ट से महरूम रह चुका है, उसका जिम्मेवार जो है हमारे ऑनरेबल सीसी साहब और हमारे ऑनरेबल एमपी साहब जिम्मेवार है। आवाम में ये खदशात है, अभी जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ है तो ये कम्युनल बेस पे दिया है और मुस्लिम मेजोरिटी को दबाने की एक बहुत बड़ा साजिश है सेंटर की तरफ से। इसमें आप क्या करेंगे? देखिए, ये सरासर एक बेबुनियाद इल्जाम है, इसको हम बिल्कुल खारिज करते हैं। ये अगर आप कम्युनल बेसिस पे अगर डिस्ट्रिक्ट देने की बात कर रहे हैं तो 1979 में जो डिस्ट्रिक्ट बनाया था
वो कौन किस बेसिस पे था? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुकूमत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब वो चीफ मिनिस्टर होता था, उस वक्त जब डिस्ट्रिक्ट के अनाउंसमेंट हुआ था, वो क्या कम्युनल बेसिस पे नहीं था? क्या खत्ते लद्दाख के अवाम को पता नहीं था? उन्होंने ये सारी चीज उनको पता है। हमारे अवाम बिल्कुल बाशऊर है, उनको पता है उस टाइम पे जब डिस्ट्रिक्ट का डिलिमिटेशंस किया था तो किस तरीके से उन्होंने बुद्धिस्ट एरिया को अलग, मुस्लिम एरिया को अलग करके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बनाया था। लेकिन आज हमने उस कम्युनल बेसिस को बिल्कुल खत्म किया है। हमने सारे इलाके को जो जिनका हुकूक है, जिनका जिन जिन एरियाओं का जिन लोगों का जिन जगहों का उनका अपना जो एक हुदूद है, उनका हक हुकूक है, उनको हम अपने बराबर हिसाब से हमने बांटने की कोशिश किया। ज़ांस्कार को जब आपने एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया, क्या मुझे बताइए कभी एक बार ज़ांस्कार से कोई बुद्धिस्ट एमएलए कभी बना? ये तारीख है। ये सब हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत में, जब हम जम्मू कश्मीर में हम रियासत में होते थे। उस वक्त जब कम्युनल चीजें हुए वो खत्ते लद्दाख ने बिल्कुल आवाम ने सहा है। लेकिन आज ज़ांस्कार को हमने डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देकर उनका पुराना एक दिराना मांग जो है हमने उनके देने का हमने काम किया है। ये सब मुमकिन हुआ है नरेंद्र मोदी हुकूमत के, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में ये चीज कामयाब हुआ है। और पर्सनल स्टैंड क्या रहेगा सोलू सांगू डिस्ट्रिक्ट को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो हमारा साफ क्लियर है कि जो अवाम जो उस एरिया के अवाम जो चाहता है उनको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए, हम वो डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस हम देने के लिए हम तैयार हैं, हम जरूर देंगे। और इस आवाज को हम, चाहे वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके हमारे आला इक़्तिदार तक, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर तक, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचाने के लिए हमें जाना पड़े, हम उस बात को हम लेके जाएंगे। और सिर्फ बात नहीं रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है ये दोनों एरिया को भी हम डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। ये हम जरूर हम कोशिश करेंगे, उसके ऊपर हम बिल्कुल कमिटमेंट है। जिस तरह से नोटिफिकेशन आया है उसमें कारगिल जो है लगभग 40 रेवेन्यू विलेज है, 80 रेवेन्यू विलेज है, और सांगो सब डिवीजन में 39 रेवेन्यू विलेज है। तो ऐसे में अगर नॉर्म्स के हिसाब से हम देखें तो फुल्ली फ़ाल करते हैं सांगो सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के लिए और शक्कर चिकन में। लेकिन अभी 19, 21 या